Current electricity is what we have to study in this chapter, right? Most of you would have done a part of it in school. सबका school का syllabus already हो चुका है start. So many of you would have studied in school current electricity, right? Current electricity is what? Flow of charge which take place due to potential difference, right? Which takes place due to potential difference. So this will be my first statement regarding current electricity. अगर मैं current electricity start करता हूँ तो current को मैं define करूंगा कैसे? Flow of charge due to potential difference. अब क्वेश्चन ये है, ना तो आपको चार्ज का आइडिया है ज्यादा, ना तो आपको पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का आइडिया है, राइट? This is at least explained to some extent in your textbook, right? ये थोड़ा बहुत तो explain किया हुआ आपके textbook में. This is not even touched in your textbook because this in our syllabus was in 8th standard. 8th standard में हमको पढ़ाया गया था. But I'm sure अभी आपको 2 साल हो गया तो you won't remember what is charge and all, right? So इतना charge का idea है हमको and ना potential difference का idea है. So I'll take at least 2 lectures to explain what is charge and potential difference. ये दोनों बड़े important term होते हैं, right? तो पहले यही दोनों हमको समझना, then only I'll be able to start or explain you what exactly current is. आपको current की picture बाद में नजर आएगी, right? So my first aim is to understand what electric charge is. Electric charge क्या होता है? सबसे बड़ा question ये है, what is electric charge, right? So our story starts from electric charge. Electric charge क्या है? Now, suppose there is a bottle placed in your table, right? There is a water bottle placed in your table. If I ask you to move this table, move this bottle from the table, what will you do? You'll first touch it, right? पहले आप उसके कांटेक्ट में आओगे. अगर आपको मैं बोलूं without touching it, without coming in contact with this bottle, move this bottle or exert force in this bottle, so will you be able to? The answer would be no. Why? Because we understand some forces which are contact forces, right? अगर आपको जूनियर क्लासेस में 9th स्टैंडर्ड में क्लासिफिकेशन पढ़ने मिला हुआ याद हो तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक क्लासिफिकेशन दिया होता है. कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर व्हाट? which forces which can be applied or exerted on any object through physical contact only. उन forces को physical contact बोलते हैं. The best example for you is muscular force, right? If I ask you to exert muscular force on this bottle, what you need is, first thing is contact. Without any physical contact, बिना इसको touch किए आप इसको move नहीं कर सकते, right? So muscular force, frictional force, normal reaction, all these are contact forces. Now imagine आपने आपके टेबल पे ये बॉटल रखा हुआ है, राइट? आपके टेबल पे ये बॉटल रखा हुआ है. सडनली दिस स्टार्ट्स मूविंग. आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो उसको टच कर रहा है, एंड स्टार्ट्स राइजिंग अप और मूविंग राइट और मूविंग लेफ्ट, राइट? तो इट विल लुक वियर्ड, राइट? ऐसे कैसे बिना किसी ने टच किए बॉटल चलने लग गया? बॉटल मूव कैसे करेगा? ना मैंने इसको पुश किया, ना किसी और ने पुश किया, ये बॉटल अपने आप से उठने लग गया, राइट लेफ्ट चलने लग गया. तो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो यहाँ पे रोल में आता है, पिक्चर में आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कुछ फोर्सेस नेचर में ऐसे हैं जो बिना कॉन्टैक्ट के लगते हैं. सच फोर्सेस आर नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. द बेस्ट एग्जांपल फॉर यू टू understand is gravitational force. Gravitational force, right? If I ask you, if I leave this pen here, what will happen? So immediately you will say it starts falling down. कैसे चलने लग गया ये? You will say gravity. बचपन से हमको सिखाया है gravity is responsible for this, right? But अगर आप अलग एंगल से सोचो तो this was at rest. इस पे बिना टच किए किसी ने फोर्स लगा दिया. ऑब्वियसली दैट वाज अर्थ. तो ना अर्थ ने इसमें हाथ लगाया ना कुछ, फिर भी इसके ऊपर नीचे डायरेक्शन में फोर्स लगाया, राइट? क्यों? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. उसके लिए कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है.
वैसे ही एक फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको समझना है हमने इस चैप्टर में, बिकॉज सारी कहानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिज्म की, सब यहीं से स्टार्ट होती है। चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल, ये सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, राइट। जिसको ये नहीं समझा वो सिर्फ बाय हार्ट कर सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो हम चलते हैं कुछ, समझो 300-400 साल पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, राइट। तो आई टू एक्सप्लेन यू इलेक्ट्रिक चार्ज में कुछ ऑब्जर्वेशंस दिखाता हूं। सपोज देयर इज अ ग्लास रॉड, और प्लास्टिक रॉड ले लो, ग्लास लेते हैं, ग्लास रॉड है, and suppose this is silk fiber, right? This is glass rod and this is silk fiber, right? Now silk fiber and glass rod, अभी आप सोचोगे कि यहाँ पे कुछ टेबल में कुछ पीसेस ऑफ पेपर पड़े हुए, सपोज दीज आर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, एंड इफ यू ब्रिंग अ प्लास्टिक स्केल और ग्लास स्केल नियर दिस, आपको लगता है ये पेपर के पीसेस उठ के आएंगे? हमारा ऑब्जर्वेशन है नहीं आते। बट इफ यू रब इट अगेंस्ट ड्राई हेयर, अगर ड्राई हेयर में आप इसको रब करो ना और इसके पास लेके जाओ, तो आप देखोगे ना एक पेपर के पीसेस लिफ्ट होते हैं, राइट। सो इफ यू रब दिस अगेंस्ट ड्राई हेयर, तो these pieces of paper are moved और lifted, ये थोड़ा सा मूव करते हैं, राइट। तो कैसे हुआ ये? मैंने ग्लास रॉड लिया या प्लास्टिक रॉड लिया, रब करने के बाद दीज पीसेस ऑफ पेपर विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट ऊपर की तरफ उठते हैं। ये कैसे होता है? तो वही चीज हमने यहाँ पे समझी। तो मैंने ऑब्जर्वेशन है, ग्लास रॉड लिया, सिल्क रॉड फाइबर लिया, the two are rubbed against each other, and then this glass rod is brought close to pieces of paper, small pieces of paper. These small pieces of paper are attracted towards glass rod, not before rubbing, but after rubbing. After rubbing glass rod against silk fiber, these small pieces of paper are weakly attracted by. Yes, Kuldeep, you have doubt? Yes, sir. I have a doubt that why glass rod is uh, only rubbed with a silk cloth. See, it's not only the example of glass and silk. There are several examples. If you recollect something from 8th standard, there are several examples. Glass, plastic, amber, animal fur, silk fiber, हेयर फाइबर, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आप रब करते हो ना, तो दे एक्वायर दिस एबिलिटी टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। वो एग्जैक्टली क्यों होता है उसका ही जवाब मुझे देना है आपको, राइट। बट सबसे पहले मैं आपको ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं। दीज आर माई फ्यू ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस यू अंडरस्टैंड ना, कि आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस फिनोमेना। रीजन ऑफ इट आई विल एक्सप्लेन इन द सेकंड पार्ट। फर्स्ट आई एम गिविंग यू सम observations. So what I have observed, if I take a glass rod and without rubbing it anywhere, if I try to, sorry, if I bring it close to pieces of paper, there is no reaction. But if I rub it against dry hair or silk fiber and then I bring it close to the pieces of paper, these pieces of paper are attracted. This is what I want to tell you, कि ऐसा होता है। क्यों होता है उसका जवाब हमको बाद में मिलेगा, right? So glass rod when brought closer to pieces of paper gets attracted, right? Now ये पहला ऑब्जर्वेशन ले लो। सेकेंड ऑब्जर्वेशन मैंने क्या देखा, if two glass rods, this is a glass rod and this is it another glass rod, if two glass rods are rubbed against silk, कुछ तो हो जाता है इनके अंदर, and are freely suspended close to each other, these two rods repel each other. अगर आप ऐसे दो रॉड्स, कौन से, ग्लास के रॉड्स, दो ग्लास रॉड ऐसा फ्रीली सस्पेंड करोगे ना रब करके, तो दे रिपेल ईच अदर, ऐसा दूर भागते ऐसे, राइट। सो इफ टू ग्लास रॉड्स आर rubbed against silk and brought close to each other, freely suspended rods हैं, so they repel each other, right? But if you take a glass rod
and a plastic rod. There's a glass rod and then there's a plastic rod, right? They are freely suspended and they are rubbed against silk. Okay. What is observed? That they attract each other. ये एक दूसरे की तरफ attract होते हैं. तो ग्लास और ग्लास अगर आपने रब करके फ्रीली सस्पेंड किया तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं. एंड इफ यू टेक अ ग्लास एंड अ प्लास्टिक दे अट्रैक्ट ईच अदर, राइट? दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर. ठीक है. देन नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन. Next observation is when a glass rod and a plastic rod, right, are rubbed against silk, they acquire ability to attract each other. When these rods after rubbing are again brought in contact, right, ये दोनों rods को वापस touch किया हमने. These two rods are again brought in contact and then separated again. What you will observe that there is no attraction or repulsion. No attraction or repulsion. कुछ नहीं होता, right? वापस बोलता हूँ. कुछ observations मैंने यहाँ लिखे हैं जो मैंने observe किया है. आपने भी observe किया होगा. Many students have like done this in the junior classes. वो scale लेके hair पे rub करते हैं and then छोटे-छोटे pieces of paper के पास लेके जाओ तो वो lift होता है. If you think properly, basically you are exerting force on something without any physical contact. ना आपको ये weird लगना चाहिए. आपको अगर physics ने जवाब दे दिया है, if you know this, then it is fine. But अगर आपको इसका reason नहीं पता है, कैसे non-contact forces लग रहे हैं, तो it should look weird to you, right? ये आपको weird लगना चाहिए. तो वापस से observation बताता हूँ मैं फटाफट से. Glass rod लिया, rub किया, पेपर पीसेस के पास लेके गया, उनमें फोर्स लग रहा है बिना कांटेक्ट. दो ग्लास रॉड लिया, दोनों को रब किया, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. तो ये सरप्राइज, दो प्लास्टिक रॉड भी रखोगे तो रिपल्शन हो रहा है. बट एक ग्लास रॉड लिया, एक प्लास्टिक रॉड लिया, देन दे अट्रैक्ट ईच अदर. तभी वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. वो जो ग्लास रॉड प्लास्टिक रॉड अट्रैक्ट कर रहे थे, उनको टच किया, फिर सेपरेट किया. तो देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्शन. अट्रैक्शन और रिपल्शन, सॉरी, attraction is lost. Change कर देता हूँ statement. Lost if glass and plastic rod are touched and then separated again and then separated again. Anyone has doubt? Sir, I have a doubt that so sir, it is not a doubt, like means I want to say that कि अगर ग्लास और प्लास्टिक और दोनों तो अलग मटेरियल है, अगर वो दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो इसका मतलब जो अट्रैक्शन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. हाँ, अट्रैक्शन न्यूट्रलाइज हो जाता है. अच्छा, हो जाता है. हो जाता है. ये मेरा अच्छा. ओके सर. This is my observation. मैं अपने observation बता रहा हूँ. Yes, this sir. is what I have observed. ठीक है. अब एक-एक करके इसका explanation बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है. Right? Sir, I think it is the transfer of charges from the glass rod to the plastic rod. Correct. But अभी तक मैंने charge बोला ही नहीं है. Many of you have already discussed in detail in 8th standard. That is the correct reason, right? तो Yes, अभी sir. मैं charge को introduce करूंगा ये phenomena के बाद. Right? अच्छा सर, मतलब ये एक ऑब्जर्वेशन फेनोमेना था. हेलो. हेलो, आ रही आवाज? Yes sir, yes sir. Okay. So let's see. ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मुझे नजर आया. व्हाट आई ऑब्जर्व कि देयर इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग हियर. तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पुराने जमाने में लोगों को ग्रेविटी थोड़ा आइडिया हो गया था, बट दिस इज समथिंग न्यू जो कभी है कभी नहीं है. ऐसे उठा के आप ग्लास प्लास्टिक रॉड पेपर पीसेस के पास ले जाओगे, दे वोंट रिएक्ट टू ईच अदर, राइट? दोनों एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाते. बट आफ्टर रबिंग अगेंस्ट सिल्क फाइबर कुछ तो मैजिक सा चीज हो जा रहा है कि they start attracting each other and nothing is visible. कुछ दिखता है नहीं एक्चुअली. तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करना.
तो इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने का स्टार्ट यहां से उन्होंने किया. दे हैड डिफाइंड इलेक्ट्रिक चार्ज. एक स्टेटमेंट लिखा, यहां से कहानी शुरू हुई, राइट. और ट्रस्ट मी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं समझता है, जिसको फील नहीं है, जिसको विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं समझता. ही जस्ट बाय हार्ट कर लेता है कि ऐसा आएगा तो ये लिखना है, दिस इज क्वेश्चन, तो दिस इज आंसर, दिस इज न्यूमेरिकल, बट फील नहीं आ सकती, राइट. तो इलेक्ट्रिक चार्ज यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसको आपको फील करना है, ये आपको दिखना चाहिए. तो इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट दे से, इलेक्ट्रिक चार्ज is an entity which has an ability to exert force on other charges without any physical contact. Property by virtue of which they do so is known as इलेक्ट्रिसिटी. बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट है, देखने जाओ तो बोलो ऐसा लगेगा सर ने कुछ तो झूठ मूठ का लिख दिया, बट सच्चाई यही है. इसको वापस रीड करके समझाने के पहले मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ. व्हाई दिस पेन फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, ये ऐसे नीचे क्यों आता है, व्हाई दिस फॉल्स डाउन, या कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी, राइट. तो ग्रेविटी क्या है, व्हाट इज ग्रेविटी? एक दो लाइन बोल दो मुझे. ग्रेविटेशनल फोर्स. करेक्ट. हु एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स? So gravity is the force which two objects exert on each other. ओके. तो अब मैं बोलता हूं आपको, ये ग्रेविटी आपके अंदर कूट कूट के भर गया, बिकॉज सिंस चाइल्डहुड यू हैव ऑब्जर्व. आप जब 6-7 साल के थे, 5 साल, तब से आपने ऑब्जर्व किया कि एनीथिंग व्हेन लेफ्ट इन एयर फॉल्स टुवर्ड्स द ग्राउंड, राइट. फिर आपके अंदर आपके पेरेंट्स ने डाला, फिर टीचर्स ने डाला, सबने डाला कि ये अर्थ है, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपना तरफ खींचती. थोड़े बड़े हुए तो सबने बताया कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर, राइट. क्यों, ये किसी को नहीं मालूम. सबने बोला देयर इज अ वर्ड ग्रेविटी, राइट. तो जैसे ग्रेविटी एक वर्ड है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी एक वर्ड है. तो ये जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है ना, मैं अगर एग्जैक्ट स्टेटमेंट बोलता हूँ, two masses exert force of attraction on each other without any physical contact. उसके लिए उनको टच में आने की जरूरत नहीं, ऐसा खींचने का जरूरत नहीं. They can exert force of attraction on each other without any physical contact. Property by virtue of which they do so. जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो ऐसा कर पाते हैं, उस प्रॉपर्टी का नाम ग्रेविटी है, राइट. So gravity is what? Gravity is the property by virtue of which two masses exert force of attraction on each other, and that force was named as gravitational force. वैसे ही electricity क्या है ना? Obviously layman language में electricity हम कुछ भी बोल देते हैं, घर में चल रहा है बल्ब, उसको electricity बोलते हैं, but that is not electricity. Electricity exactly क्या होता है? जैसे masses की एक property होती है, वैसे charges हैं. क्या है अभी तक मुझे नहीं मालूम. Nobody knows what is charge. वो मैं थोड़ी देर के बाद फिर से एक नए तरीके से समझाऊंगा. कुछ तो है जिसको हमने चार्ज नाम दिया है, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं. They exert force on each other without any physical contact, right? And the property by virtue of which they do so is known as electricity. तो उस प्रॉपर्टी को नाम दिया है इलेक्ट्रिसिटी. ओके, ठीक है. ना क्वेश्चन इज, ये चीजें जो ये फिनोमेना था, this was observed in many cases. This phenomena was observed in many cases. मतलब आप एम्बर, एनिमल फर, कैट, मतलब सिल्क फाइबर, प्लास्टिक, ग्लास, बहुत सारी चीजों में ये फिनोमेना ऑब्जर्व हुआ था. तो सवाल ये था कि ये चार्ज किस में प्रेजेंट है. तो अगला स्टेटमेंट दिया उन लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने, हमारे जो पुराने थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, मैटर इज
Yeah, everything is made up of charge. हर चीज ही चार्ज से बनी हुई है. एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ चार्ज, राइट. ठीक है, फिर ये क्या हुआ? कभी अट्रैक्शन, कभी रिपल्शन, कभी कोई रिएक्शन नहीं. ये क्यों हुआ? तो यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट आया. क्या स्टेटमेंट आया? मासेस, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी रिपल्सिव होता है क्या? Have you ever heard that two objects repel each other by virtue of gravity? Anyone? No. Never. Gravitational force is always attractive in nature. Two objects always attract each other by virtue of gravity, right? But यहाँ पे कभी रिपल्शन, कभी अट्रैक्शन. तो क्या दिमाग लगाया? स्टार्टिंग में सोचो, ये आज आपको इतना यूजुअल लग रहा होगा, सर इसमें कौन सा बड़ा दिमाग लगा, ठीक है. बट ये एक एक चीज सोचने के लिए 10-10, 20-20 साल लग गए. लोग सोचते रहे. आज आपको सारी पिक्चर पता है. इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन. बट दैट टाइम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वाज नॉट नोन. इनफैक्ट चार्ज वर्ड ही नहीं था. दिस चार्ज वर्ड somebody gave us after seeing these observations. ये ऑब्जर्वेशन की एक्सप्लेनेशन एक दो साल में नहीं आया. It took several years, hundreds of years का डेवलपमेंट है ये, राइट. तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, सोचना मजा आएगा. सो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ चार्ज, राइट. क्वेश्चन वाज व्हाई समटाइम्स अट्रैक्शन एंड समटाइम्स रिपल्शन. तो दे सेड gravitational force is always attractive. Gravitational force is always attractive as there is only one type of mass. कोई दो टाइप का मास नहीं होता. मास एक ही टाइप का होता है, राइट. But this forces between charge, force acting between charges are attractive as well as repulsive because there are two types of charges. There are two types of charges. ये मजेदार कहानी हो गई क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होता है. क्यों अट्रैक्टिव होता है भाई? बिकॉज दो टाइप का मास ही नहीं होता. मास एक ही टाइप का होता है. मास होता है, राइट. हालांकि वो भी बहुत मुश्किल होता है. इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन मास आल्सो, दो वी हैव अ स्टेटमेंट गिवन टू अस, मैटर स्टोर्ड इन द सब्सटेंस इज मास. बट स्टिल मास इज डिफिकल्ट टू डिफाइन. एनीवेज, उसको साइड रखते हैं हम लोग. तो मास में हमेशा अट्रैक्शन था. क्यों अट्रैक्शन था भाई? मास एक ही टाइप का होता है. चार्ज में कभी अट्रैक्शन, कभी रिपल्शन है. यस कुलदीप.